already there with us. So can we all have a standing ovation for Jaya Kishori ji? Can we all have a standing ovation for Jaya Kishori ji? Yes! Narula, it's the first year students here at Swagatam 2024. You cannot control the other person's behavior. You cannot control the other person's actions. And you can never control the outer world. But you can always control your reaction. Yes, and the star is here. Your actions. We have with us Jaya Kishori ji. अपने ही अपने को काटते हैं अगर वो मुझसे विरुद्ध खड़े, लेकिन अगर वे साथ खड़े हैं तो किसी भी चीज का, किसी भी घटना का, किसी भी दिक्कत का या किसी भी परेशानी का सामना डट कर That's it. So now we will be presenting her bio note. At first, I would request our Honorable Director, Sardar Simarpreet Singh, Honorable Director of JIS Group, to kindly felicitate Jaya Kishori ji with the traditional Uttorio, sapling, and the token of honor. So let us all put our hands together in welcoming Jaya Kishori ji, who is being felicitated by Sardar Simarpreet Singh, our Honorable Director of JIS Group. So it's really a moment of pride for us here at Narula Institute of Technologies, Swagatam 2024, and at the same time it's a moment of glory for JIS Group to have Jaya Kishori ji with us. So Jaya Kishori ji being felicitated by our Honorable Director of JIS Group, Sardar Simarpreet Singh. So let us once again put our hands together for the wonderful welcome. Now I would request Namrata ma'am to kindly present her bio note. Over to you. The proud recipient of National Creator Award for the title of Best Creator for Social Change from our Honorable Prime Minister on March 8, 2024. Jaya Kishori is on a mission to guide people on a spiritual journey and help them choose the right path in life. She is known for imparting wisdom that is necessary in tackling the world. She gives out lessons on values and virtues that she believes are essential in shaping a beautiful life. Her speeches are fine-tuned for guiding her audience towards perfection. The primary focus of her discourse is to bestow faith and positivity among people who need confidence in themselves and in the world around them. She is outspoken about spirituality and wants more people to follow her path and make spirituality a part of their lifestyle so that they can attain mental peace and stability. She wants to inspire the masses to lead an accomplished and, more importantly, a peaceful life. The cornerstones of her sermons lies in the passion for making people understand the importance of family. Jaya Kishori has earned quite a few noteworthy achievements with her efforts. In addition to the one mentioned before, her other accolades include the youth spiritual icon from Fame India magazine and also the winner of the Women Era Award for Motivational Speaker and Spiritual Orator. The Samaj Ratna Award from Narayan Seva Sansthan Udaipur. She was the Sanskar Artist of the Year 2013 to 2014, Sanskar Sandhya awarded by Sanskar Channel Bombay. She is the proud recipient of the Adarsh Yuva Adhyatmik Guru Purishkar, which was awarded by Sri Mohan Bhagwat, Chief of Hindu Nationalist Organization Rashtriya Swayam Sevak Sangh, in the 6th Bharatiya Chhatra Sansad Award ceremony held in Pune in January 2016. She has also been received an award from Pencil.com as one of the most inspiring women all over the world. I would now like to invite Jaya Kishori Madam to do what she does best, inspire her audience. Okay, and I will request the students, first of all, please be seated. Ma'am is there for you to enlighten you for the next 1 hour, but you need all to be disciplined and be seated. Over to you, ma'am. The stage is all yours.
पहले सभी बैठ जाएं। नमस्ते कोलकाता, राधे राधे। I think I should start the way I gave that introduction video. नरोला इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट्स के लिए आमी तुम्हाके भालोबाशी। थैंक यू सो मच जितने भी कमिटी मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस सेशन के लिए इतनी जल्दबाजी में, और उसमें भी आप सब इतने अच्छे से आए, तो थैंक यू वेरी मच। आप सब अपनी जर्नी को शुरू करने जा रहे हैं, एम आई राइट? यस। एक तो कितनों ने कथाएं सुनी है, सेशन सुने हैं, रील्स देखे हैं, हाथ उठाना। यू नो मैं अकेले बात नहीं करती, तो आपको आवाज करते रहना है, हाँ, यस, नो, ओके, वेरी गुड। सो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है, उसके लिए सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके सारे सपने पूरे हो, यू रीच द हाइट्स। आप अपने लाइफ में वो सब कर पाए जो आप करना चाहते हैं, खुद को एक अच्छी लाइफ दें, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दें, और कुछ ना कुछ चेंज इस सोसाइटी में लेकर आए। क्योंकि मेरी नज़र में सक्सेस पैसा नहीं होता, मेरी नज़र में सक्सेस फेम नहीं होता, ये सब बाय प्रोडक्ट्स है, ये आ जाते हैं। अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं पैसा आ जाएगा, चिंता मत करना, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अगर ठीक से काम करोगे, मेहनत करोगे, पैसा आ जाएगा। अगर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करोगे, फेम भी मिल जाएगा। लेकिन ये सक्सेस नहीं होता, क्योंकि अगर ये सक्सेस है तो इसका तो कोई पैरामीटर ही नहीं है क्या? आई थिंक वो लाइट अच्छी थी, मुझे चेहरे दिख रहे थे थोड़े, थैंक यू सो मच। क्योंकि इसका कोई पैरामीटर ही नहीं है। आज आप कहे कि मेरे पास 10 लाख है, मैं सक्सेसफुल हूं, तो 50 लाख बोलेगा तो मैं कहूं, 10 करोड़ कहे मैं कहूं, 100 करोड़ कहे मैं कहूं, कोई कहे कि 1 मिलियन फॉलोअर्स होने से कोई सक्सेसफुल है, 5 मिलियन कहे मैं कहूं, 10 मिलियन, 15, 20, तो कोई पैरामीटर है क्या इसका? कहां रुकेंगे जाके? कोई रोक ही नहीं है। तो ये सक्सेस कैसे हुआ? आप मानोगे कब कि आप सक्सेसफुल हो? क्योंकि कोई ना कोई आकर खड़ा होगा जो कह देगा कि भाई हम तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो मेरे अब तक की लाइफ में, अब तक की जर्नी में, क्योंकि मुझे ठीक से काम करते हुए 22 साल हो चुके हैं, 22 इयर्स, और इस 22 इयर्स की जर्नी में मैंने एक ही चीज सीखी है कि अगर आपकी वजह से किसी एक की लाइफ में भी एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आप सक्सेसफुल हैं। बाकी सब चीजें होगी नहीं होगी, कैसे होगी, बाद में देखा जाएगा। पर आपका पहला मोटिव होना चाहिए कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आना चाहिए। याद रखना, जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं, भगवान उनका अच्छा सोचते हैं। अगर मैं ये सोचकर काम कर रही हूं कि बाकी सबका भला होना चाहिए, तो उनका ध्यान रखने का काम है कि इसका भला होना चाहिए। तभी हो सकता है ना, आज भगवान को दिखेगा कि ये व्यक्ति बदलाव लेकर आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो ये कब तक करेगा? जब तक इसकी लाइफ में भी ठीक ठाक काम होता रहेगा, हाँ कि ना? इंसान डोनेशन कब देता है? जब उसके घर में भी पैसा है, यस और नो? जब उसके घर में पैसे की कमी होने लग जाएगी तो वो अपना पेट भरेगा कि डोनेट करेगा? अपना पेट भरेगा। लेकिन जब भगवान को दिख जाए कि भाई इसकी मानसिकता काम करने की है, सेवा करने की है, तो भगवान की जिम्मेदारी क्या है? इस घर में पैसे की कमी ना हो। तो आपका इंटेंशन तय करेगा कि आगे आपकी लाइफ कैसे होगी। तो सबसे पहले इसलिए मैंने कहा सक्सेस का मतलब फेम और मनी नहीं है, तो इनके लिए काम मत करना। आपका एक पर्पस होना चाहिए,
उसके लिए काम करना, ये बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कहा था तुम्हारा काम लड़ना है, हार जीत के बारे में सोचना नहीं, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है क्या? यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको मार्क्स कितने मिलेंगे आपके हाथ में है क्या? पेपर चेक तो सर करेंगे, टीचर्स करेंगी, आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपके हाथ में क्या है? जितनी जोर से कहा उतने अच्छे से करना भी। हाँ, तो हमारे हाथ में है मेहनत करना, पढ़ाई करना, अच्छे से पेपर्स देना, उसके बाद आपका काम खत्म। तो आपको मतलब उसी चीज से रखना है जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं, उसके बारे में सोचकर फायदा नहीं है। ये सच है कि नहीं? लेकिन आप सबसे ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं? मान लीजिए कल एग्जाम है, अब हमारा दिमाग चलना शुरू होता है, कल मेरे पास कौन बैठेगा? यस और नो? लकी शर्ट, लकी टॉप, लकी पेन, लकी टाइमिंग, ये तामझाम पता है कौन करता है? जिसने पढ़ाई नहीं करी है। जिसने करी है उसको फर्क नहीं पड़ता। जो मेहनत नहीं करता वो ही किस्मत की बात करता है। जिसने मेहनत की है उसको फर्क नहीं पड़ता किस्मत साथ है कि नहीं है, वो जानता है मेरी मेहनत रंग लाएगी, आज नहीं तो कल लाएगी, पर मेहनत रंग लाती है। पर जिसने की नहीं, उसको 10 काम करने हैं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहां भी चढ़ा दूं, वहां भी चढ़ा दूं, इनसे काम नहीं होता, सच्ची नहीं होता। क्योंकि जब मैंने सेशन शुरू किए थे, जब मैं स्कूल में कॉलेज में पढ़ती थी, लोग मुझसे कहते थे कि भाई आपको तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, आपका एग्जाम तो भगवान देते होंगे। मैंने कहा हाँ, अभी मैं यहाँ सेशन कर रही हूँ, वहां भगवान पेपर लिख रहे हैं। नहीं भाई, जब मैं नहीं पढ़ के जाती थी तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, मुझे भी स्कूल में डांट पड़ती थी, टीचर्स डांटती थी, लेकिन मुझे पता था कि मैंने उसके लिए नहीं पढ़ा, इसीलिए अच्छे मार्क्स नहीं आए। जिसके लिए पढ़ती थी आ जाते थे। तो यहां फिर भगवान वाली बात तो है ही नहीं कि भक्ति करने से पेपर अच्छा हो जाएगा, भगवान को इतना प्रसाद चढ़ा दोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। भगवान इतने बायस थोड़ी है कि कोई पूरी रात पढ़ रहा है और कहेंगे इसको मार्क्स नहीं दूंगा, वो जिसने मुझे प्रसाद चढ़ाया था इसको पास कर दूंगा। ऐसे तो भगवान है नहीं। यस और नो? तो आपको समझना है कि जहां मेहनत की जरूरत है वहां मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं सारे स्टूडेंट्स के लिए कह सकती हूं, जिस पर आपका पहला फोकस होना चाहिए, वो है मेहनत, भरपूर मेहनत, रात दिन एक कर दो। क्योंकि आपने ये चुना है, खुद नहीं चुना है, हाँ कि ना? अब लोग मन में कह रहे होंगे पेरेंट्स ने भी चुना, तुम बोलेंगे थोड़ी, साथ ही तो लाए हैं। पर अब चुन लिया ना, तो पूरा करो कि यहां आ गए, अब काम यही है, और काम है क्या, बाकी चीजें देखी जाएगी। देखिए जिंदगी में कोई ना कोई समय तो संघर्ष के लिए देना पड़ेगा। मैंने संघर्ष में अपना बचपन खोया, मैं नहीं खेली, मेरा पूरा काम, पूरा स्ट्रगल, पूरी मेहनत बचपन में हुई। अब सक्सेस है, अब अपने मन से छुट्टियां लेती हूं, अपने मन से काम करती हूं। अब मेरी ही एज के मेरे दोस्त स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको ये समय खोना पड़ रहा है, यानी स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई समय तो खोना पड़ेगा। आप नहीं सोच सकते कि आपको सातों सुख मिल जाएंगे, किसी को नहीं मिले, भगवान तक को नहीं मिले। उनको भी समय समय पर जो चीजें छोड़नी थी छोड़नी पड़ी। घर छोड़ना पड़ा, यस और नो? कृष्ण जी को कितना मजा आता था उनको ब्रज में, छोड़ना पड़ा, और ऐसा छोड़ा कि फिर मुड़ के वापस नहीं आए। क्योंकि कर्म भूमि, कर्म भूमि कैसे कहते हैं? जहां आप कर्म करते हैं, आपके काम की भूमि, क्योंकि वो बुला रही थी।
तो सब कुछ छोड़ा, मौज मस्ती छोड़ी, अपने छोड़े, प्रेम छोड़ा, है ना। अभी सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तो आप लोग का यही होगा। हर हफ्ते प्यार हो रहा है, हर दूसरे हफ्ते दिल टूट रहा है, और हर हफ्ते का प्यार सच्चा प्यार लगता है। कुछ नहीं है भाई, सब मोह माया है। अभी जो आपको लग रहा है ना बस यही है सब कुछ, रुको बेटा, अभी जिंदगी देखो, सब पता चलेगा, हाँ कि ना। और जिस तरीके से आप हंस रहे हैं मुझे लगता है आपको दिख गया है एक दो बार तो। तो जब समझ आ गया तो सुधर जाओ। पर मैंने कहा ना हम सुधरते नहीं, हर हफ्ते दिल टूटता है, हर दूसरे हफ्ते फिर सच्चा हो जाता है। तो काम कब करोगे? इन्हों में लगे पड़े रहोगे तो सब मिल जाएगा। कहते हैं ना प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा। तो पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, काम पे ध्यान दीजिए, कुछ बनिए, फिर इन चीजों में माथा लगाइए। पर पहले कुछ, आप है कौन? आपका अपना व्यक्तित्व क्या है? अपना नाम क्या है? अपनी जगह क्या है? अपना काम क्या है? कुछ भी नहीं पता अभी। तो पहले इन चीजों पर ध्यान दीजिए, बाकी सब सही समय पर मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है जोड़ियां ऊपर से, आप कितनी जोड़ियां बना लो, वो लिख के बैठे, वो भी ऊपर कह रहे होंगे तुम, मुझे पता है किससे होना है। लेकिन कर्म आपको दिया गया है। कई चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है, लेकिन कर्म किसको दिया? कर्म करने की आजादी आपकी है। अब आप क्या करेंगे ये आप तय करिए। भगवान ने खुली आजादी दी है, कुछ भी नहीं बताया। तुम जो करोगे वही तुम्हारे पास घूमकर आएगा, और आता है, याद रखना। और एक बात मैं समझा दूं, अच्छा हो या बुरा, जब मैं आज अपनी उम्र के लोग, युवाओं को देखती हूं कि हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, और नेगेटिव होके हम जितनी गालियां खुद को देते हैं ना, उतना तो मुझे लगता है दुनिया भी हमें नहीं देती। हम जितना बुरा खुद को मानने लग जाते, उतने तो बाहर वाले भी हमको नहीं मानते। ये मत करिए, क्योंकि आज हम इतने वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं कि हम अपनी चीजों पर भरोसा नहीं करते, पर जब वेस्ट उसको अपनी भाषा में आपको कहता है तब मान जाते हैं। जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आज बड़ा मैनिफेस्टेशन पर बातें हो रही हैं। कौन कौन मानता है? हाथ उठाना। मैनिफेस्टेशन के बारे में कौन कौन मानता है? जो बोलो वो हो जाएगा, जैसा बोलते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाथ उठाओ, कौन कौन करता है सब? हाँ, तो ये हमारे जब युगों युगों पहले संत बोल के चले गए कि जीभ पे मां सरस्वती बैठती है, तब समझ नहीं आया। इसका अर्थ क्या है कि जो बोलते हो वो हो जाता है। ये आपको कब से समझाया जा रहा है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता। हम खुद कहते एक गलती हुई नहीं, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे सारे काम खराब होते हैं, भगवान तो मेरे पीछे पड़ा है। अब पड़ जाएगा। किस्मत खराब अभी तक थी नहीं, अब हो जाएगी। बोला किसने? और साइंटिफिकली तरीके से भी कैसे होता है बताऊं आपको। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुनता है। अब आप कह रहे हो किस्मत खराब है, किस्मत खराब है, काम नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। अब सबकॉन्शियस माइंड आपको तरीके बताएगा जिससे काम नहीं होंगे। लेकिन जब आप अपने आप को बार बार बोले मेरे काम हो रहे हैं, मैं सब कर सकता हूं, मुझसे सब हो सकता है, चीजें भले ही मेरे हिसाब से नहीं हो रही है फिर भी सब सही होगा, तब सबकॉन्शियस माइंड आपको वेज बताता है जहां से सब सही हो सकता है। सॉल्यूशंस मांगोगे तो वो सॉल्यूशन देगा, प्रॉब्लम्स मांगोगे तो वो प्रॉब्लम्स ही देगा। आपके ऊपर है आप मांगते क्या है। और हम मैक्सिमम लोग प्रॉब्लम्स ही मांग रहे हैं। यस और नो? हाँ कि ना? बताओ, सच्ची बताओ। ये रोना किसी का खत्म नहीं हो रहा आजकल। आप किसी से भी पूछ लीजिए कैसे हो, अरे पूछो मत,
इतनी बुरी लाइफ है नहीं किसी की जितना वो बना रहे हैं। तो इस चीज से बाहर कैसे आते हैं? काउंट योर ब्लेसिंग्स। मनुष्य की आदत है, उसके पास जो है वो उसको दिखता नहीं, और जो नहीं है वो उसी के पीछे भागता है। हाँ कि ना? मिलने के बाद कद्र खत्म हो जाती है। किसी ने बड़ी सुंदर बात लिखी थी कि कोई भी चीज मिलने के बाद खराब लगने लगती है, अब वो इंसान हो या चांद। दूर से चांद बड़ा सुंदर लगता है, पास को तो लगता है चांद में दाग है। दूर से तो बड़ा सुंदर लग रहा था तुमको। जब तक मिलती नहीं ना चीजें, तभी तक हमको रहता है मिली नहीं मिली नहीं। मिलने के बाद हमको उसकी इज्जत नहीं होती, लेकिन इज्जत करनी पड़ेगी, क्योंकि चीजों की कद्र करिए वरना ऊपर वाला छीन लेगा। आपको वैल्यू करना पड़ेगा जो आपके पास है। क्या क्या है? घर। बहुतों के सर पे छत नहीं है, आपके है, ये ब्लेसिंग है। खाना, कि आज आप अच्छे से खा पा रहे हैं, ये एक ब्लेसिंग है। आपकी चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, यानी कोई है जो आपसे बड़ा आपके घर में है, ये ब्लेसिंग है। आप मन के कुछ कपड़े पहन पा रहे हैं, ये ब्लेसिंग है। ये बहुतों के पास, एक बात याद रखना, आपके पास जो है वो किसी के जिंदगी का सपना है कि उसमें कोई इतना मिल जाए। मान लीजिए कि जिस कॉलेज में भी आप पढ़ने आए हैं, कई होंगे जो चाहते होंगे यहां पढ़ना, पर शायद नहीं आ पा रहे। आप आए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है ढंग से पढ़ना, वरना कहीं ना कहीं आपने वो सीट बर्बाद कर दी ना, जहां कोई और बच्चा आके पढ़ सकता था अच्छे से। तो आपके पास जो है उसकी कद्र, ये ब्लेसिंग्स है। जब हम अपने ब्लेसिंग्स को याद रखते हैं तो जो नहीं है वो कम दुख देता है। ऐसा नहीं दुख नहीं देगा, मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ। ऐसा नहीं कि अरे दुख गायब हो जाएगा, नहीं, दुख तो होगा। जो नहीं है वो सब कुछ चाहिए, लेकिन फिर याद आ जाता है कि ठीक है उसके लिए काम जरूर करेंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। कितनों के पास है यहां जिनको लग रहा है कि मेरे पास बहुत कुछ है? आप याद रखते हैं वो चीजें? फॉर एग्जाम्पल, यहां सबके पेरेंट्स आए हुए, कईयों के, आई मीन, इससे बड़ी ब्लेसिंग और क्या हो सकती है? पर पेरेंट्स पे हम ध्यान नहीं देते। जब जवान हो रहे होते हैं ना, हमें ऐसा लगता है अभी कितना कुछ है करने को, इन चीजों पे ध्यान दें कि हर थोड़ी देर में जो मम्मी का फोन आ रहा है वो उठाएं, तो हम इग्नोर कर देते हैं। उठा लो, पक्का नहीं है कितने दिन तक आएगा, क्योंकि आप भले ही जवान हो रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं। आपकी जिंदगी शुरू हुई है, उनकी खत्म हो रही है। और कितना क्या पूछते हैं फोन करके आपसे पेरेंट्स, बताओ कैसे हो और खाना खाया कि नहीं, है ना? कुछ क्वेश्चंस उनका जवाब दे नहीं रहे, उनको पूछ नहीं रहे, दूसरों को पूछ रहे हैं खाना खाया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। खा लेंगे वो, जिनको पूछना है पहले उनको पूछो। जिनसे जिंदगी भर प्यार सीखा उनको तो जता नहीं रहे, वो सीख के कहीं और जता रहे हैं प्यार। एक दो फोन पेरेंट्स को भी कर लीजिए अपने, उनको भी फोन करिए, थोड़ा बात करना है, क्या करना है, कैसे हो, क्या हो, खाना खाया कि नहीं। और एंड में एक क्वेश्चन, अपने दिन बता दिया, आपको सब सही लग रहा है ना, आपके हिसाब से मुझे कुछ करना चाहिए। अब ये मैंने आपको क्यों बोला, अब आप कहेंगे अब वो पूछेंगे तो वो सब बताने लग जाएंगे, वो करना पड़ेगा, पर वो समझते नहीं, हमारा समय अलग है। आई नो, और कौन सा आप करने वाले हैं? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? यहाँ कोई और उम्र का खड़ा होता तो वो समझ भी सकता था, मुझे सब पता है, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ कई लोग आकर कहते हैं कि पेरेंट्स ने ये नहीं करने दिया इसीलिए नहीं कर पाए। तो पेरेंट्स ने बोला था कि दिन भर फोन यूज करने, कैसे बुक के अंदर फोन लगा के रखते थे आप? पेरेंट्स ने बोला था कि रिलेशनशिप रखना, रखा ना?
पेरेंट्स ने बोला था ना पार्टी करने, की ना, उन्होंने बहुत कुछ के लिए मना किया था, और जिसको जो करना होता है वो तरीके ढूंढ लेता है, और जिसको नहीं करना होता उसको एंड में ब्लेम लगाना है कि इसकी वजह से नहीं किया और उसकी वजह से नहीं किया। तुमको करना ही नहीं था, करना होता तो तुम तरीके निकाल लेते। तो आप सब करते हैं, आपको भी पता है कि जरूरी नहीं उन्होंने आपको सजेशंस दिए तो आप वही बात मानेंगे, लेकिन याद करिए एक समय था जब उनसे पूछे बिना आप हिलते तक नहीं थे। हर चीज उनके हिसाब से होती थी, हाँ कि ना? क्योंकि हम डिपेंडेंट थे उन पे, हमारे लिए हमारे हीरो वही थे, हमारे आइडल्स वही थे। यहां तक कि अगर किसी बात को साबित करनी है तो हमारा आखिरी हथियार होता था मम्मी कसम, हाँ कि ना? और इस कसम के बाद सामने वाले की हिम्मत भी नहीं होती थी वापस क्वेश्चन करने की, क्योंकि उसको भी पता था इसके बाद कहां झूठ बोलेगा। इतने जरूरी थे वो हमारे लिए। तो उस व्यक्ति के लिए ये बदलाव कितना बड़ा होगा कि जहां उसका बच्चा बाहर कदम भी नहीं रख रहा उससे पूछे बिना, आज वो उससे कुछ नहीं पूछ रहा। आज उनको लग रहा है हम किसी काम के है ही नहीं। तो आपको कौन सा उनकी बात माननी है, पर उनको खुश करना है ये दिखा के कि आप अभी भी जरूरी है, आपसे ही पूछ के काम हो रहा है, आपको बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। इतनी सी खुशी और वो खुश हो जाते हैं। उनको तो ज्यादा चाहिए भी नहीं, बाकी जगह तो आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है खुश करने के लिए, उनको तो कुछ नहीं चाहिए। याद रखना, माँ बाप के तरीके भले ही गलत हो सकते हैं, उनके इंटेंशंस कभी गलत नहीं होते। और एक बात और मैं आप सबको बता दूं, यहां इस पूरी दुनिया में अकेले माँ बाप ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा उन्नति करे, अकेले। बाकी आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आप जो भी आपके आसपास है, वो सब चाहेंगे आप उन्नति करें, आप सक्सेसफुल हो, उनसे ज्यादा नहीं। वो खुद हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ये अकेले होते हैं जिनको ये हमसे भी ज्यादा काम करे, हमसे भी ज्यादा पैसे कमाए, हमसे भी ज्यादा नाम इसका बड़ा हो, अकेले होते हैं। तो इनके तरीके भले ही गलत होते हैं क्योंकि समय अलग है, हाँ कि ना? पर एक पेरेंट्स के लिए भी कहूंगी कि अभी तक मैंने बच्चों को समझाया, पर जो पेरेंट्स बैठे हैं, एक काम जरूर करिए, बच्चों का जो हम कंपैरिजन करते हैं वो करना बंद करिए। शर्मा जी का लड़का, शर्मा जी की लड़की, बंद कर दीजिए। क्योंकि एक सिंपल सी बात बताइए, जब हम बच्चों को कंपेयर करते हैं कि उसने ये किया तुमने क्यों नहीं किया, किस दिन बच्चे ने आके आपको कंपेयर कर दिया तो उसके पापा मम्मी तो इतनी छूट देते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे? उसके पापा मम्मी तो ऐसा करने देते हैं, आप क्यों नहीं करने दे रहे? तब हम क्या कहते हैं, हमारे घर के अपने नियम हैं। हर घर के अपने नियम होते हैं, मैं उसकी चीज नहीं, हर घर के अपने नियम होते हैं, हमारे घर के भी थे। और मुझे बहुत पहले समझ आई चीजें कि जो चीजें मुझे, और मैं अकेली को ऐसा नहीं था, अलाउड नहीं था, हम में से कोई नहीं करता था, पूरा परिवार, मम्मी पापा मैं मेरी बहन, कोई भी नहीं, ये नियम है हमारे घर का। तो जब मुझे बाहर कई बार मेरे दोस्त, उनके पेरेंट्स भी कह देते थे कि ये तो गलत बात है, हमारे बच्चे तो जाते हैं तुम्हारे नाइट स्टे करने, तुम क्यों नहीं करती? तो मुझे ये नहीं लगता था कि मेरे पेरेंट्स गलत कर रहे हैं। मैं उनसे कहती थी, आंटी आपके घर के भी कुछ रूल्स होंगे? बोले हाँ, वैसे ही मेरे घर के भी है। मैं अपने घर के रूल्स निभाती हूँ, ये अपने घर के रूल्स निभाती है। तो नियम सबके घर में होते हैं, लेकिन उस नियम की कद्र कब होगी? जब ना माँ बाप बच्चों को कंपेयर करे, ना बच्चे माँ बाप को कंपेयर करे। हर बच्चा अलग है, हर माँ बाप अलग है, सबका जीवन अलग है, सबका स्वभाव अलग है, तो उसका अपना तरीका भी अलग ही होगा ना, उसकी यात्रा भी अलग होगी। तो कंपेयर करके फायदा नहीं। कोई प्रेसिडेंट 50 की एज में बन गया, कोई 80 के बन रहा है, बने तो दोनों प्रेसिडेंट थे, हाँ कि ना? जिसका जब समय आएगा सफलता मिल जाएगी। आपको सपोर्ट करना है, सारे माँ बाप से कहूंगी, क्योंकि जब आज माँ बाप
बाप अपने बच्चों को मेरे पास लेकर आते हैं और बच्चों से कहते हैं कि सीखो इनसे, तुम्हारी उम्र की है और कितना अच्छा काम कर रही है, तब मैं उन माँ बाप को कहती हूं ये मुझसे सीखे, इससे पहले आप मेरे माँ बाप से सीखिए। सिर्फ एक चीज कि हम खड़े हैं, तुम मेहनत करो और कुछ नहीं। सक्सेस मिल जाएगा, नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, पैसे आ जाएंगे, नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, मेहनत दिखनी चाहिए। जब तक तुम मेहनत कर रही हो, मेरे लिए तुम ही विनर हो। मुझे कभी नहीं कहा गया तुम फर्स्ट आनी चाहिए, कभी भी, पर मेरे पेरेंट्स ने एक ही बात कही, हमको मेहनत दिखनी चाहिए कि मेरी बच्ची मेहनत कर रही है, और अगर वो कर रही है तो मेरे लिए तुम ही फर्स्ट आई हो। तो मैंने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया। उस वक्त भले ही फर्स्ट नहीं आए, अब आ गए। तो जब फर्स्ट आना लिखा होगा, आ जाएंगे, तो आप कंपेयर मत करिए। और एंड में एक चीज जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है, और मेरे हिसाब से हर उस युवा के लिए जो अपनी जर्नी शुरू कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट। बचपन में हम सब कर लेते थे, हम खेल भी लेते थे, पढ़ भी लेते थे, माँ बाप के साथ भी समय बिता लेते थे, होमवर्क भी कर लेते थे। रीजन, हम टाइम टेबल सेट करते थे, हाँ कि ना? एक रात पहले सब टाइम टेबल सेट होता था, कल कौन कौन से पीरियड है, कौन कौन सी किताबें लेके जानी है, क्या क्या पढ़ना है, आने के बाद कितना होमवर्क करना है, सब कुछ सेट था। अब कुछ नहीं पता। यहां अधिकतर लोग जो अपने घर पे बोल रहे होंगे ना, हमको टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, एक बार अपना फोन ऑन करके स्क्रीन टाइम चेक करना, आपको पता चलेगा कितना टाइम रहता है आपके पास दिन में, जो आप वेस्ट करते हैं और फालतू चीजों में। मैं रील्स के अगेंस्ट नहीं हूं, आज कई बातें मैंने रील्स में से ही निकाली है, आप समझ ही गए होंगे, है ना? कई आपने भी देखे ही होंगे। आप देख के भूल जाते हैं, हम काम में लगा लेते हैं, यही अंतर है। तो ऐसी चीजें देखो जो आपके काम आए, ताकि समय व्यर्थ ना हो। ऐसी चीजें मत देखिए जो देखने के बाद भी आपको लगे हमने पूरी क्यों देखी। ऐसे भी आते हैं रील्स, पता है ना, जो देखने के बाद आपको भी लगता है कि मुझे दूसरे सेकंड से समझ में आ गया था ये बहुत फालतू है, फिर भी आप 40 सेकंड तक देखते हैं, है ना? कितना समय व्यर्थ हुआ। फिर कैसे आप नाराज हो सकते हैं भगवान से, समय से, किस्मत से कि मुझे सफलता नहीं मिली। वो कहेंगे जब तुम ऐसे समय बर्बाद कर रहे थे ना, वहां कोई और पढ़ रहा था, इसीलिए उसको मिली। तो आपको अपना दिन सेट करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट के खिलाफ नहीं हूं, पर उसका समय बांधिए कि दिन में इतना दिन मेरा एंटरटेनमेंट का है, तब भले ही मैं कुछ भी देखूं, फालतू से फालतू चीज, मुझे मजा आ रहा है, हो सकता है किसी और को ना आए, पर मुझे अच्छा लग रहा है, पर समय बांधिए। बैठे हैं तो बैठ ही गए, देख रहे हैं तो देखे ही जा रहे हैं, और फिर हम कहते समय ही नहीं मिला। समय बहुत है, क्योंकि सफल से सफल व्यक्ति के पास भी 24 घंटे ही है और असफल के पास भी 24 घंटे ही है। जो करना है 24 घंटे के अंदर ही करना पड़ेगा, और उसमें सब करना है। मेहनत भी करनी है, नाम भी बनाना है, परिवार के साथ भी समय बिताना है, अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है, सब करना है। समय ज्यादा नहीं है, तो आपको तय करना पड़ेगा आपको कैसे करना है, ताकि जब मरे तो मन में कोई रिग्रेट ना हो कि अरे ये तो रह गया, कुछ रहना नहीं चाहिए। तो समय सेट करो, जिसका समय बंधा हुआ होता है ना, इतने बजे ये, इतने बजे वो दिन में सब कर लेता है। और आप करके देखिए, आपको खुद को फील होगा कि मेरा समय हर जगह गया है, मैंने सब कुछ कर लिया, और धीरे धीरे आपको फील होने लगेगा मेरा सब चीज सही ट्रैक पर आ रहा है, क्योंकि अब हर चीज को समय दे रहे। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें अच्छी लगी हो। एंड में मैं एक ही चीज कहूंगी, क्योंकि मेरा रिलेशन उसी चीज के साथ है, मेरा नाम उसी से बना है, मेरा काम वही है,
ये सब अपनी जगह और आपकी आध्यात्मिक जर्नी अपनी जगह। यू हैव जीरो आइडिया स्पिरिचुअलिटी आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकती है। और हर चीज में, क्योंकि मुझे नहीं पता किसने ये बात फैला दी कि भगवान, शास्त्र, पूजा पाठ बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे का काम कहां से हो सकता है? स्क्रिप्चर्स सिखाते हैं जीवन जीते कैसे हैं, सीख रहे हैं जब जीवन ही नहीं बचा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। कोई किताब आपको इसीलिए दी जा रही है कि आप समझे कि आपके जीवन में आपको क्या करना है। ये कब पढ़नी चाहिए बताओ? स्टार्टिंग में आप पढ़ कब रहे हैं? बुढ़ापे में रामायण खोल रहे हैं। अरे क्या होगा अब? भगवान बोलेंगे अब ये बंद करो, मेरे ही पास आना है, मैं ही बता दूंगा। कॉमन सेंस है ना ये तो किसने ये बात फैला दी कि बुढ़ापे में पढ़ो, बुढ़ापे में पढ़ो? तब मतलब ही नहीं है पढ़ने का। तब आपको लग रहा है कि आपने जितने पाप किए धुल जाएंगे। जो ये बात भी किसी ने फैला दी, गंगा जी में किए हुए पाप धुल जाते। नहीं धुलते भाई। गंगा जी में अनजाने में किए हुए पाप धुलते हैं, सोचे समझे पाप नहीं। जो आपने पूरी प्लानिंग के साथ किए हैं वो गंगा जी में जाके नहीं धुलते। तो इसीलिए आपके स्क्रिप्चर्स, आपका मेडिटेशन, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट से होनी चाहिए। आप आज से अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए, हाँ कि ना? चाहे काम की जर्नी है, पढ़ाई की जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी आज से ही शुरू करिए। और आप देखिए आपको सब मिल जाएगा। लोग कहते हैं हम पढ़ने की कोशिश तो करते हैं, मन नहीं लगता, लग जाएगा। पढ़ाई तो करते, याद नहीं रहता, होने लगेगा। पेशेंस नहीं है, आने लगेगा। ये सब वहां से कनेक्टेड है। वो छूट गया इसलिए ये सब चला गया। पहले बचपन से ये चीजें सिखाई जाती थी, इसीलिए सबके अंदर थी। तो इसीलिए सब अपनी जगह और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी अपनी जगह। आप खुद चुनिए स्टेप्स क्या होने चाहिए। मैं नहीं आप फोर्स करती आपको कि ये करो। बहुत से स्टेप्स होते हैं। इंटरनेट में दिन भर आप टाइम पास कर ही रहे हो, जाके यही सर्च कर लो कि क्या क्या करना चाहिए स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। 10-15 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 उठा लीजिए कि ये 2 आज से मेरी जिंदगी का हर दिन का रूटीन रहेगा, और उसको रूटीन की तरह निभाइए। और फिर आप देखिए कितने बड़े चेंजेस आने वाले हैं। सो आई होप आपको मेरी बातें थोड़ी अच्छी लगी। अगर समझ आई तो लाइफ में उतारिए, क्योंकि मैक्सिमम बातें ऐसी है जो आपको सबको पता ही होगी। और मेरे हिसाब से दुनिया में हर बात सबको पता है, क्योंकि 4-5 बातें ही घूम रही है जो सब बता रहे हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम हो गई है कि हमको जो पता है वो भी हम चाहते हैं कोई और आए और हमको बताए। यस और नो? आपको नहीं पता मेहनत करनी चाहिए, आपको नहीं पता टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन आपको इंतजार था मैं आऊं और बताऊं। जिंदगी भर कोई मोटिवेशन देने नहीं आएगा। YouTube के वीडियोस भी 15, 20, 30 मिनट के बाद नहीं चलेंगे। काम उठ के आपको ही करना पड़ेगा। हम भी 24 घंटे या 365 डेज के लिए नहीं है। खुद उठिए, खुद को मोटिवेट करिए, मेहनत करिए, सफलता प्राप्त करिए, और फिर अपनी सफलता की कहानी सबको बताइए। ये असली सफलता है। थैंक यू सो मच नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने कमिटी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, थैंक यू वेरी 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 मच। प्रिंसिपल सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।